Good morning, students. Welcome to all in your physics class. I hope that you all are well at the home with your family, and also hope that I think we will meet in month of July. Sure, it is expected. But before that, we will continue the study. During the study, our chapter is running magnetism. In magnetism, we have studied about the bar magnet, solenoid, solenoid as a bar magnet, and then earth magnetism, components of the earth magnetism. This is a very important topic. In earth magnetism, angle of dip, angle of declination, horizontal component, these are the important terms. And after that, the behavior of the magnetic materials or classification of the magnetic materials, behalf of their susceptibility, behalf of their relative permeability, behalf of their diagrammatic structure, behalf of their examples, etc. Clear? And after that, I have sent you some PDF of the exercise solutions and some examples. So I did send you the example solutions, and I gave you for the self-assessment. Clear? Now there is one example, and that example is 5.5. It is some different and typical example, and it many times asked in the board exam. Clear? So I would like to explain example number 5.5. Clear? Example 5.5 is saying that there is a magnet or bar magnet placed at the point of O, represented by the P, where the P indicates the direction. That is, direction is that this is the north polarity and this is the south polarity, and these are the magnetic movement of a compass needle. Means Q1 first compass needle, Q2 second compass needle, Q3 third compass needle, and so on. So there are 6 compass needles placed around a bar magnet. 6 हमारे पास में कंपास नीडल रखे हुए हैं. So which are in stable condition, which are in unstable condition, and which are not in equilibrium condition? It is the example number 6. It is the problem of it. So we will just solve it by the डायग्राम. और डायग्राम कौन सा होगा कि बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होगी ड्यू टू द बार मैग्नेट. जैसे होल्ड कर. So for such solution we will draw the field line due to a bar magnet. So we have placed a bar magnetic, and field lines always tends to move from north pole to south pole, or always away from the north pole and towards or on the south pole. So there is a bar magnet P, it is the bar magnet, direction of magnet, and it is the north polarity. So north polarity से magnetic field line is straight away, and this is the direction of field lines, tends to move from north towards the south, tends to move north and towards the south. Clear? First compass needle Q1 is placed here like that. This one is Q1, means there is a compass needle, and it is the magnetic field. It is the magnetic field. This is known as Q1, this is known as Q2. Now here there is a third, I will make it here like that. This is the third compass needle, and here this is the fourth compass needle. Fourth compass needle. Here this is the fifth compass needle, and it is up direction, and here there is a sixth compass needle, that is Q6. Is that clear? Now dear students, we know the magnetic field due to a bar magnet at the axis or at the equatorial. At the axis, B equal to mu naught over 4 pi
2m over r cube. Equation number first. This is the magnetic field due to a bar magnet at a distance r at the axis. And similarly ये पर axis आ गया, sorry. Now B equal to इक्वाटोरियल पर ये एक्सिस आ गया और ये इक्वाटोरियल पर कितना होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m over r cube. Equation number 2. We know very well that the magnetic field at the equatorial is half of magnetic field at the axis. ये होता है, ठीक है. चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी. ये तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ गया और ये जो एरो लगा रखे हैं ये तो कंपास निडल है. जानते हैं कंपास निडल में, इन कंपास निडल like that, this is north, this is south, and compass needle, in compass needle always dipole moment north to south direction, sorry, south to north direction. In a compass needle, in a bar magnet, dipole moment is always from south to north direction. So south to north direction, साउथ टू नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ को शो कर रहा है, ये साउथ को शो कर रहा है. नाउ हियर ये साउथ ये नॉर्थ, कंपास निडल है, ये साउथ ये नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ सॉरी एंड दिस इज द अपोजिट, नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर. चलिए आगे. डियर स्टूडेंट, we know the formula, sorry, for the stable, non-stable and the equilibrium, the energy formula due to a bar magnet, and this is U equal to minus mb cos theta. This is the energy of a bar magnet. Equation number 23 कहते हैं. क्लियर. शायद कोई दिक्कत नहीं होगी. अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को, तो आपको हटा देता हूं थोड़ा सा यहां से. यहां देखिए, इधर देखते हैं. देखिए फॉर द फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट के लिए U1 फॉर द फर्स्ट कंपास निडल. देखिए कैसे आएगा. U1 इक्वल टू माइनस mb साइन, सॉरी mb cos थीटा. देखिए इधर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा, m तो ये आ गया और ये कितना है, सॉरी mb cos थीटा और थीटा इक्वल टू 90. देखो इधर देखिए, क्यों बार मैग्नेट का कंपास मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्थ टू साउथ है. तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के कारण आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड और कंपास निडल वर्ड परपेंडिकुलर है. तो थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, 90. ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पर जिस पर क्यूबल कंपास रखा हुआ है, क्यूबल कंपास पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट और कंपास के कारण मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट कंपास का, ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का, दोनों के बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है तो 90 और cos 90 कितना होता है बेटा, 0. तो U1 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा मैं इसको. चलिए आप दोबारा से कर दिया इसको. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब ऐसा ही सिमिलर 2 की बात करते हैं. देखिए U2 इक्वल टू, देखिए U2 में मैग्नेटिक फील्ड किधर से आया, नॉर्थ से आया सीधा, ये नॉर्थ से, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमारे पास में जो कंपास है उसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ हॉरिजॉन्टल आ गया. दोनों के बीच में एंगल यहां भी कितना होगा, 90 डिग्री. तो माइनस mb cos 90 सीधा लिखूंगा, सो इट इज ऑल्सो 0. U1 एंड E2 यानी कि जो फर्स्ट कंपास रखा है और सेकंड कंपास रखा है, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम. दोनों की एनर्जी कितनी है, 0. इफ देयर एनर्जी 0 देन दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम. इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा. ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं थर्ड की. U3 इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला सेम है. एक और चीज, अगर ये 0 नहीं होता हमारे पास में, cos 0 cos 90 इसलिए 0 आ गया. दैट्स व्हाई आई डोंट हैव द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m एंड p. मैंने b और m के वैल्यू सीधे नहीं रखे क्योंकि cos 90 सीधा 0 हो गया. चलिए आगे. U3 इक्वल टू माइनस mb और cos थीटा. नाउ थीटा है, मैं बार बार थीटा नहीं लिखूंगा. देखिए थीटा कितना होगा,
नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड V आ गया, और ये कंपास नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ में एरो, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो थीटा कितना हो गया बेटा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। शायद समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता दूं, आई विल रिपीट इट अगेन। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली डाउनवर्ड मींस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, and in question it is given that the compass needle magnetic moment of compass needle vertically downward, so both are in vertically downward, that's why the angle between them is 0. If angle will be 0, then it will be minus mv cos 0 1, that is it will be minus mv. We don't have the value, देखिए minus m as it is, m मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट b कितना होता है? ये क्या है? इक्वाटोरियल है, इक्वाटोरियल पर b कितना होता है? देखिए इक्वाटोरियल पर भी मैंने ये लिखा हुआ है, m कितना है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई m, ये मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r क्यूब u3, इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इज इट क्लियर? क्या रखा है? माइनस आ रखा है, ध्यान रखा है। एनर्जी किसमें है? नेगेटिव में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला वाला ना, इसको यहां से U4, नाउ U4 इज देयर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट नॉर्थ से सीधी यानी कि अप डायरेक्शन, और कंपास नीडल में एरो नीचे की तरफ दे रखा है, यानी कंपास नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन। तो थीटा यहां कितना हो गया बेटा? थीटा इधर हो गया कितना? 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा? माइनस mv cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री -1 होता है, cos 180 डिग्री -1 यानी mv -1, दैट इज mv प्लस पॉजिटिव एनर्जी आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव एनर्जी आ गया। क्लियर? आगे बात करते हैं। फिर 3 हो गया, 4 हो गया, नाउ फिफ्थ कहां है? ये रहा फिफ्थ। एट द फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड लाइंस इस तरह से नॉर्थ से साउथ चलती है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो कंपास नीडल का एरो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में यहां भी एंगल कितना आ गया? u5 इक्वल टू, यहां भी एंगल थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल है 180 डिग्री। तो ये आ गया माइनस mv cos 180। इसे भी सीधा लिख देता हूं, कितना आ जाएगा? क्योंकि एंटी पैरेलल है, जैसे ये एंटी पैरेलल वैसे ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल के केस में क्या आ गया? mv प्लस का आता है। क्लियर? अब एक और रह गया लास्ट में, और इस लास्ट की बात करता हूं u6, आ रहा है क्या? u6 आगे बेटा ये इन U6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये साउथ पोलैरिटी के एक्सिस पर है, तो साउथ पोलैरिटी के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड द साउथ होती है, यानी वर्टिकली अप, और ये कंपास नीडल में इसका भी दे रखा है वर्टिकली अप डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में थीटा कितना है? या थीटा इक्वल टू 0 माइनस mv cos 0 1, तो कितना आ गया? माइनस mv। u6 इक्वल टू माइनस mv। इज इट क्लियर? फिर वैल्यू रखना चाहो तो क्या आएगा? माइनस m एज इट इज, b का वैल्यू कितना आएगा? एक्सिस पर b कितना होगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर r क्यूब, 2m ओवर r क्यूब। क्लियर? तो इस तरह से मैंने क्या किया? 3 कंडीशन अलग अलग फाइंड कर ली, 3 कंडीशन अलग अलग फाइंड कर ली। तो इन अलग अलग कंडीशंस में अब अपन को ये देखना है जो उसने क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि Q1 Q2 क्या है, Q3 Q4 क्या है, Q5 Q6 क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करते हैं Q1 Q2 के लिए वैल्यू U का वैल्यू कितना रखा था? 0। सो दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल नंबर 5 बुक से एनसीईआरटी में देखेगा, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, शॉर्ट आंसर दे रखा है, बट हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट, सो इट विल एक्सप्लेन बाय द डायग्राम। क्लियर? U1 U2, next is U3 and U6. U3 minus mv and U6 also minus mv, and what is the condition in between them?
पैरेलल कंडीशन। पैरेलल मींस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 है तो हमने जो डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ये प्रीवियस क्लास में, तो डाइपोल मोमेंट में था कि थीटा इक्वल टू 0 मस्ट बी इन मोस्ट इक्विलिब्रियम, मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो किसमें होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। किसमें होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, जहां थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो 0 किस में था? थीटा इक्वल टू 0 3 में था, थीटा इक्वल टू 0 6 में था। तो हमारा आंसर पहले क्या आएगा? देखो u1 u2 नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं बाद में लिखता हूं इसको। देखो ये दोनों तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों नॉट इन इक्विलिब्रियम, और ये एंटी पैरेलल आ गया 6 और ये दोनों, तो ये 6 और ये किस में आएंगे? मैं एक बार यहां लिखूंगा आपके सामने, u3 एंड u6, u3 एंड u6 आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर एक और आएगा लास्ट में बचा हमारे पास में u4 जिसका एनर्जी कितना आ गया? प्लस mv, और u5 जिसका कितना आ रहा है? प्लस mv। क्यों आ रहा है? देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? u4 में एंगल कितना है? 180, और थीटा इक्वल टू 180 होता है तो उसे कहते हैं मोस्ट अनस्टेबल। तो u4 एंड u5 एनर्जी ऑफ 4 एंड 5 मोस्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये आ गया अपने पास में। क्लियर? मोस्ट अनस्टेबल। अब बात करता हूं मैं आगे इसमें, देखिए तीनों टर्म आगे अपने पास में, यही 3 आंसर शॉर्ट में आपके एनसीईआरटी में दे रखे एग्जांपल में। तो इस तरह से वो समझ नहीं आते कि वो क्या स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, डायग्राम से उसमें से समझ नहीं आते। तो उस डायग्राम का मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसको आप समझ के उसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक सबसे पहले 3 हो गए, u1 u2 हो गया, u3 u4 हो गया, u5 और u6 हो गया, ठीक है। अब आता है कि u4 दे रखा है, ये u3 दे रखा है, ये u6 दे रखा है। देखो उसने कहा है क्वेश्चन में, साइड से मेरे पास में क्वेश्चन है लास्ट में, कि व्हिच कॉन्फिगरेशन करेस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? तो देखिए लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं इन सबको एक बार हटा लेता हूं छोटा सा। एनर्जी के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या है? फॉर द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ये एक्सिस पर है, u इक्वल टू माइनस mv cos 0 है, ध्यान रखना है यहां, और cos 0 1 हो गया, तो ये कितना बन गया? माइनस m और b का वैल्यू बताओ इक्वेटर पर, म्यू नॉट ओवर 4 पाई और m ओवर r क्यूब, ये आ गया m ओवर r क्यूब, ठीक है। ये किस पर आ गया? 3 का आ गया, ऐसे 4 का आ जाएगा इक्वेटर पर, लेकिन ये एंटी में आ रखा, तो ये उसमें लोएस्ट एनर्जी की बात की, तो लोएस्ट में क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, माइनस तो हमारे पास a आ गया। अब माइनस और किस में आ सकता है? माइनस एक 6 में और आ रहा है u6, ये तो किसका निकाला? u3 का, u6 इक्वल टू माइनस mb, ये भी cos 0 है, माइनस m इंटू b कितना है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर r क्यूब, म्यू नॉट ओवर 4/2m ओवर r क्यूब, ये 2m आ रखा है, तो इसका मतलब माइनस 2 इंटू u3, या u हटा दो इसमें से 2 हटा दो, तो ये हमारे पास में u3 के बराबर आ गया u6 का वैल्यू। u6 का वैल्यू 3 से डबल आ रखा है, 3 से डबल आ रखा है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई वैल्यू ज्यादा तो होती है, लेकिन अगर नेगेटिव में ज्यादा है तो वो कम होते हैं, नेगेटिव में ज्यादा है तो कम होती है, इसलिए u6 का वैल्यू डबल है, लेकिन नेगेटिव में डबल है, और नेगेटिव में डबल है तो लोएस्ट कौन सा होगा? u6 होगा, ध्यान रखना, u3 नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने u4 और u5 नहीं लिया, तो हमने भी फॉर्मूले पीछे देखिए, आप फॉर्मूले फाइंड किया है कि ये वैल्यू क्या जाता है? u का प्लस mv, पॉजिटिव आ गया, ये तो लोएस्ट हो नहीं सकता। ये 5 वाला भी क्या आता है? u5 इक्वल टू प्लस mv, ये भी नहीं हो सकता। u4 और u5 किस में आ रहे हैं? प्लस में आ रखे हैं, और u1 u2 किस में आ रखे हैं? 0 में आ रखे हैं, तो 0 इज आल्सो द पॉजिटिव वैल्यू,
नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में क्या बचेगा, एक तो 3 वाला बचेगा और 6 वाला बचेगा। तो 3 वाला बाइसेक्टर पर है, नेगेटिव में आधी होगी, नेगेटिव में ज्यादा होती है वो छोटी होती है, नेगेटिव में कम होती है वो बड़ी होती है। तो इस तरह से अपना ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमने ओवर किया है। इस एग्जाम्पल को आप ठीक से अब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपके पास है सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, भाई अगर नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार इसका कल पीडीएफ भी भेज दूंगा एक, ठीक है। और अदरवाइज समझ में आ गया होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रिपीट करके आप फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है। यस स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। हालांकि टॉपिक हमने इस टॉपिक चैप्टर के शुरुआत में ही कर लिया था, लेकिन वो हम फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं की। और ड्रॉ इसलिए नहीं कहते कि अपने सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, लेकिन इसका एक छोटा सा पॉइंट है और पॉइंट आता है हमारी एक्सरसाइज में भी है, और वो है न्यूट्रल पॉइंट। क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। तो उस न्यूट्रल पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसके लिए हमें ये ड्रॉ करना होता है कि फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है। मैंने शायद एक फील्ड लाइन का डायग्राम भी आपके पास भेजा हुआ पहले। तो देखिए, स्टैंडर्ड ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पहली कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन N to N मींस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। व्हेन नॉर्थ पोल इज इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दो कंडीशन से देखो फाइंड करते हैं। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इन साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दोनों कंडीशन अपन को करनी है। देखिए, तो फील्ड लाइंस ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सब जानते हैं इस तरह से, ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ से और ये कर्व हो जाती है इस तरह से। मैं एक बार यहां से ऐसे थोड़ा हटा लूं, जरूरत पड़ेगी। क्यों हो जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ इस बार मैग्नेट के कारण ही नहीं आती, इस पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट काम करता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा कि जैसे जैसे इससे ड्रॉ होगी फील्ड लाइन से एंगल लेकर, इसके इफेक्टिव एरिया से दूर जाएगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में चली जाएगी। और कहां चली जाएगी? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। कुछ याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि जब बाहर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसको कहते हैं जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में फील्ड लाइंस इनसाइड द अर्थ होती है। तो ये क्या करेगी? इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ की तरफ चली जाएगी, ये अर्थ की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए, यहां बना देता हूं थोड़ी सी कुछ, ये इस तरह से घूमने के बाद में इस तरह से कहीं ऐसे इधर आएंगे, इस तरह से इधर आएंगे, ये लाइक दैट। ये सब कहां से? एट द साउथ पोल, लाइक दैट। ये फील्ड लाइंस इस तरह से यहां से कोई जाके और ये फील्ड लाइंस साउथ पर एंड नॉर्थ से जाते हैं साउथ की तरफ, ये साउथ की तरफ, ये साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ पर जाएंगे, ये नॉर्थ पर, साउथ से आएंगे और नॉर्थ पर जाएंगे। तो ये जो फील्ड लाइंस दे रखा है ना, ये इफेक्ट दे रखा है, ये किसका है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइन ड्यू टू अर्थ। ये किसके कारण है? अर्थ के कारण।
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और जो कर्व में आ रखी है ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। लेकिन ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे यहां से एंगल बढ़ता है वैसे इन फील्ड लाइंस के साथ कर्व हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच में जहां एक पॉइंट आता है, ये जैसे इसका इक्वाटोरियल आ गया ये, तो ये पॉइंट इक्वाटोरियल पर एक ऐसा पॉइंट होता है, ये ज्योग्राफिकली अर्थ की फील्ड लाइन है, ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और दोनों के बीच में इक्वाटोरियल पर इसे कहते हैं न्यूट्रल या नल पॉइंट। न्यूट्रल या नल पॉइंट, इसका मतलब बता सकते हैं क्या है? इसका मतलब होता है कि इस पर अगर कंपास नीडल को रख दिया जाए या किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो बार मैग्नेट फ्री रोटेट करेगा, उस पर ना तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा और ना ही बाहर मैग्नेट का फील्ड काम करेगा। मींस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड ड्यू टू बाहर मैग्नेट बिकम्स सेम। क्या हो जाता है? दोनों का बराबर हो जाता है, और बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा बॉडी क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। सेम न्यूट्रल पॉइंट विल बी कम्स हियर, इक्वाटोरियल पॉइंट पर आएगा इस तरह से। तो ये इक्वाटोरियल पर हमारे पास में एक 5.15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉरी 5.14 मैंने आपको दे रखा है, 5.15 हो रहा है, आई विल गिव यू इन नेक्स्ट पीडीएफ, उसे अगले वाले में दे दूंगा। मैंने इसलिए नहीं दिया था उस समय कि ये समझ नहीं आया होगा कि ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट क्या है। अब समझ में आ जाएगा। तो हमने टॉपिक में तो पढ़ा ही है कि ये r डिस्टेंस पर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब समझ गए क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ज्योग्राफिक। दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 0। और जब 0 हो गया इसलिए उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं या नल पॉइंट कहते हैं। तो व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट होल्ड इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ देन न्यूट्रल पॉइंट कम्स एट द इक्वाटोरियल। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछा हुआ है, ठीक है। तो हर बार पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को कि न्यूट्रल पॉइंट कब एक्सिस पर आता है और कब इक्वाटोरियल पर आता है। तो अपन को पता चल गया नॉर्थ इज इन नॉर्थ देन न्यूट्रल पॉइंट एट द इक्वाटोरियल। तो इसका मतलब एक्सिस पर कब आएगा? जब नॉर्थ पोल को साउथ में रख देंगे, जब नॉर्थ पोल को साउथ में रख देंगे। तो ये फील्ड लाइंस आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, या फिर मैं इसको पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये फील्ड लाइंस है आपके, और ये दोनों क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। ध्यान रखना है, ये एरो जो लगा रखे हैं किसके हैं? ज्योग्राफिकल के। ये किसके हैं? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे अगला वाला करते हैं। अगले वाले में क्या करते हैं अपन? इसको नॉर्थ को साउथ में कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड with the north pole in south direction or south pole in north direction, geographical north magnetic south, geographical south magnetic north direction। तो अब फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होंगे? तो देखिए, always field lines tends to move from north to south direction, north to south direction, like that। ये एक्सिस always tends to move away, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चलिए, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी 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 सॉरी, नॉर्थ, यस नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ है। ये फील्ड लाइंस नॉर्थ से अवे और साउथ डायरेक्शन, ठीक है। टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ से निकलती हैं और किधर जाएगी? साउथ पर। तो देखिए यहाँ पॉइंट पर इधर कहीं भी, जैसे ये इस तरह से फील्ड लाइंस आ गई और ये इधर से आ गई इस तरह से, ये एक्सिस पर ये आ गया न्यूट्रल पॉइंट। यानी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस का, ज्योग्राफिकल फील्ड लाइंस का इस तरह से कोई पॉइंट क्रिएट होगा, ऐसे इधर आ जाइए, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस हैं इस तरह से, ये इस तरह से,
ये ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल साउथ पर ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये ज्योग्राफिकल का अप डायरेक्शन में है सारा, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, बाहर मैग्नेट का नीचे, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप और ले लीजिए, मैं इसका पीडीएफ पर भेज रहा हूँ, तो आप इसे पीडीएफ, सॉरी आज भेज रहा हूँ तो पीडीएफ भी आप साथ में देख लेंगे इसका। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन साउथ डायरेक्शन या ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन, ठीक है। एंड देयर न्यूट्रल पॉइंट कम्स एट द एक्सिस, ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मैंने आज क्या किया है, एक एग्जांपल दिया 5.5, एक फिर आपको न्यूट्रल पॉइंट दिया है। अब इस न्यूट्रल पॉइंट की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 5.15 मीन्स 15th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसे पूरा करेंगे, ठीक है। और साथ में मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की छोटी छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है उससे और आपको भेज देता हूँ, जिस तरह से आपकी एडिशनल एक्सरसाइज से पहले का सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एडिशनल एक्सरसाइज हम लोग बाद में जब सामने आपने सामने होंगे, चैप्टर का रिवीजन होगा, तब एडिशनल एक्सरसाइज भी समझ में आएंगे और तब अपन उसको करेंगे। इस समय लिखने से कोई मतलब नहीं, तब तक आप अपने आराम से स्टडी कीजिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफी है। ओके, गुड नाइट।